Hello students, good morning everyone. I am Praveen, your social science teacher. Today I explain you the chapter of economics, the story of village Palampur. First of all, I give introduction about this village. Palampur is a hypothetical village. It is situated in Kangra district in Himachal Pradesh. Palampur is a well connected with his neighboring town and villages like Raniganj. It's a small village. Here all transport facilities are available like tonga, bogie, motorcycle, bull cart, jeep, tractor, truck, etc. etc. This village has two primary and one high school and also has a primary health center run by the government. Here one private dispensary also. About 450 different caste families are living here. About 75% of the people in Palampur are dependent on the farming for their livelihood. Out of them, 80% caste families have their own land, and one third of the total population is covered by the scheduled caste. Most of the houses have electric connection. Small manufacturing, transportation, shopkeeping, and farming and other activities are production activities of this village. Organization of production. The goal of the organization is to produce goods and services. Main goal is only produce goods and service for us and other ones. Land, labor and capital are required for the production. Natural resources fulfill the requirement of the land and water. For the labor intensive industries यानी जहाँ पे ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, लेबर इज़ रिक्वायर्ड एंड फाइनेंशियली सपोर्ट एंड कैपिटल आल्सो रिक्वायर्ड for here. Physical capital are also required for the production. Item that constitute physical capital are कौन कौन से कैपिटल फिजिकल कैपिटल में चीज़ें आती हैं, उसको भी हम देखते हैं. पहली चीज़ है टूल्स, मशीन, बिल्डिंग एक्स्ट्रा. दूसरा है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. टूल्स के अंदर आप जितने भी औजार हैं वो आते हैं. मशीन्स जो बड़े बड़ी मशीनें होती हैं. बिल्डिंग्स जहाँ पर ये सब चीज़ें रख करके और प्रोडक्शन किया जाता है. रॉ मटेरियल का मतलब है कि जैसे वीवर के लिए जो थ्रेड है या यार्न है वो चीज़ रॉ मटेरियल कहलाती है. वहीं पोटर के लिए क्ले है जो कि रॉ मटेरियल कहलाता है. इसी के साथ में ये 3 प्रकार के होता है कैपिटल. फिजिकल कैपिटल जो है 3 टाइप्स का होता है. वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, एंड जो फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूड्स टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग एटसेट्रा. एंड द थर्ड वन ह्यूमन कैपिटल मीन दैट लेबर is also required for the selling purpose. Farming in Palampur, because 75% or more than 75 people are dependent on the farming, the most important productive activity is farming in this village. Farming in Palampur is based on the following factors. Number 1, land is fixed, मीन्स वहाँ पे लैंड पूरी तरीके से फिक्स है, कोई और लैंड की गुंजाइश नहीं है. चेंज इन द मेथड ऑफ द कल्टीवेशन, किसी प्रकार का जो पुराना जो पद्धति थी खेती की उसे चेंज किया गया है. मल्टीपल क्रॉपिंग यानी एक ही भूमि पर अलग अलग समय में अलग अलग फसलों का उत्पादन. मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न तरीके से फार्मिंग की जाती है. सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड यानी लैंड को इस तरीके से यूज किया जाए कि वो बंजर ना हो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सभी के अंदर
ताकि सभी खेती कर पाएँ। लेबर की ज़रूरत, कैपिटल की आवश्यकता होती है, यूज़ किया जाता है। सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट, सबसे फर्स्ट है लैंड इज़ फिक्स्ड। More than 75% population are dependent on the farming in Palampur. Land area under the cultivation is fixed. There has been no expansion in the land under cultivation since 1960, and there is no hope in future to expand the land. Multiple cropping and modern farming are the method of the cultivation used in Palampur to increase the production from land. जब लैंड फिक्स्ड है तो मल्टीपल क्रॉपिंग का और मॉडर्न फार्मिंग दो मेथड्स को यूज किया गया जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मल्टीपल क्रॉपिंग, इसके अंदर क्या होता है, पालमपुर के अंदर एक भूमि से अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल द्वारा समझा देते हैं, ज्वार एंड बाजरा ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पोटैटोज आर प्रोड्यूस बिटवीन द अक्टूबर एंड दिसंबर, एंड वीट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये मेन रबी फसल है, ये रबी में होती है। मॉडर्न फार्मिंग को आप सभी समझते हैं। यहाँ पे हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ द सीड्स आर यूज्ड एंड द farm machineries are used in farms, fertilizer are used, डैम्स से कैनाल्स को जोड़ करके वहाँ पे उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके, जहाँ पे ये कैनाल्स नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पे पंप सेट्स को लगा करके, और यहाँ पे मॉडर्न तरीके से इन सभी मेथड्स को यूज़ किया जाता है और फिर मॉडर्न फार्मिंग की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का जो है फूड ग्रेन यहाँ से प्रोड्यूस किया जा सके। इन इंडिया फार्मर्स ऑफ द पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। Introduction of the Green Revolution facilitated the cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties of seeds instead of the traditional seeds. यहाँ पर हाई यील्डिंग सीड्स को यूज किया गया वीट के लिए, राइस के लिए, ताकि अच्छी जो है बीज होगा तो अच्छी फसल भी होगी, और उसको मॉडर्न तरीके से यूज किया गया जिससे बजाय कि ट्रेडिशनल सीड्स को यूज करने के, और ऐसा करने से जो है फसल, जो ग्रेन है, वो प्लांट्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे और बड़े होंगे और फसल ज़्यादा अच्छी होगी। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिपोर्ट इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड। जो मॉडर्न जो है फार्मिंग है उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ ज़्यादा करेंगे तो अंडर ग्राउंड वाटर जो है, रिवर वाटर जो है, लेक्स हैं, वो सभी पोल्यूटेड हो जाती हैं। इसी के साथ साथ में केमिकल जो फर्टिलाइज़र है वो बैक्टीरियाज़ को किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देता है, जिससे सॉइल जो है वो पूरी तरीके से बेकार होकर बंजर हो जाती है। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करें, नेचुरल खाद का यूज़ करेंगे, नेचुरल मैनुअल का यूज़ करेंगे तो आपको जो आपकी भूमि है उसको भी आप बचा पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, about 1/3 of the 450 families are landless in पालमपुर। लगभग 1/3 जो 450 का है वो लैंडलेस है, उसके पास लैंड नहीं है। 240 families cultivate small plots of the land less than 2 hectare, यानी कि लगभग 240 फैमिली जो ऐसी हैं बहुत ही छोटे उस पर प्लॉट्स पे खेती करती हैं, उनके पास 2 हेक्टर से भी कम की भूमि है, और जो रिमेनिंग 60 फैमिलीज़ कल्टीवेट मोर देन 2 hectares ऑफ द लैंड, एंड द फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स कल्टिवेटेड द ऑन द 10 hectares और मोर देन 10 hectares लैंड इन पालमपुर। लेबर, some farmers are worked on their own land and some worked on the another land.
फॉर विच दे रिसीव द वेज। जितने भी दूसरों के खेतों पे काम करते हैं उन्हें उसके बदले में वेज मिल जाता है, और जो अपने यहाँ पे खेती करते हैं वो अपना खुद का उत्पादन कर पाते हैं। वेजेस जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है, और अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए भी अलग अलग होता है। यह आपको कैश में या फिर किसी और रूप में प्रदान किया जाता है। कैपिटल, जो हुज कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड in the method of the modern farming. Small farmers have lack of the capital, so they borrow the money from the large farmers and the money lenders on the at highest rate of the interest. There are three types of the capital which are mostly used in any organization: either working capital, fixed capital and human capital, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सेलिंग ऑफ द फार्म एक्टिविटी, सरप्लस प्रोडक्शन आर सोल्ड टू मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स बाय द स्मॉल फार्मर्स। जितने भी छोटे जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी जो भी सरप्लस प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें मीडियम और लार्ज फार्मर्स को बेच देते हैं। आफ्टर दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स सेल देयर सरप्लस प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द मार्केट। वो अपना प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच देते हैं, और जो ट्रेडर्स होते हैं वो बाय करते हैं देयर प्रोडक्ट्स को मार्केट से और सेल कर देते हैं उसे शॉपकीपर्स को इन टाउन एंड सिटीज़ में, और वहाँ से लोग उसे परचेज़ कर लेते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी चलती हैं यहाँ पर, और यहाँ के लगभग 25% पीपल आर एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। Small scale manufacturing in Palampur, small scale manufacturing is done. Originally work was done in the home or field with the help of the family labor or farmers. Therefore labor is rarely hired. बहुत ही कम चांस होता है जब लेबर को हायर करना पड़ता था, क्योंकि फैमिलीज़ में यहाँ की जो फैमिलीज़ हैं वो गरीब हैं, तो वो अपना काम यहाँ पे लेबर का काम कर देती हैं। फार्मर्स जिनके पास में समय होता है एक्स्ट्रा वो यहाँ पे ये काम कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, और यहाँ पे रोड के ऊपर जो है हर प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल हैं। कुछ लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो इस सर्विस को यूज करते हैं उसके अंदर काम करते हैं, और उसके बदले में उन्हें पैसा भी मिलता है। डेयरी इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ द अर्निंग मनी इन पालमपुर। ज़्यादातर लोग और महिलाएं इसमें लगी हुई हैं। डेयरी इज़ ए टाइप ऑफ बिजनेस वेयर हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल मिल्क आर डन मोस्टली बाय फ्रॉम काऊ एंड बफेलो। जो गाय और भैंसों के द्वारा यहाँ पे जो है जो मिल्क का उत्पादन किया जाता है, ये एक छोटे बिजनेस के रूप में यहाँ पे है, और यहाँ पे लोग जो है अपना ज़रूरतों को पूरा करने के बाद में जो सरप्लस होता है उसे डेयरी पे जा कर के बेच देते हैं, लोगों को उसको सेल कर देते हैं। तो ये भी एक अच्छा उनके लिए मनी का सोर्स बना हुआ है। शॉपकीपर्स जो हैं पालमपुर में जो अर्निंग का एक अच्छा सोर्स है, वो जाके मार्केट से बड़े मार्केट से जाके सामान लाते हैं और फिर उसे अपने यहाँ पे टाउन में बेचते हैं। टूथपेस्ट है, बैटरीज है, शॉप है, बिस्कुट है, ऑयल है, शुगर है, वीट है, राइस है, नोटबुक्स है, कैंडल्स हैं, पेन है, पेंसिल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी ये लोग बेचते हैं। और उनकी शॉप जो है वो इंडिविजुअली रूप से चलाते हैं और अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। इस प्रकार की सभी एक्टिविटीज़ फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर। और इसी के साथ ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है।